Hello students, how are you? Today we'll talk about the Van 't Hoff factor. Okay, and this topic of the solution is really important because most of the 5-mark numerical questions are asked from this particular topic, Van 't Hoff factor. Okay, so this is the most important topic of the solution chapter. So we'll talk about the Van 't Hoff factor. So listen, we know there are 4 kind of colligative properties. Number 1 is relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Is it okay? These are the formulas are given here. So now listen, what is the meaning of this? What is the significance of this Van 't Hoff factor? Listen, actually you have a aqueous solution of NaCl. Okay, suppose you are having a aqueous solution of NaCl and you calculate it with the help of these formula, with the help of these colligative formulas. We calculated, suppose the osmotic pressure of aqueous NaCl comes out to be 2 atmospheric pressure. Okay, are you getting me? हमने इसको इस फॉर्मूले के से ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने एक्वस NaCl का हमने कैलकुलेट किया कि व्हाट वुड बी द osmotic pressure. So osmotic pressure comes out to be 2 atm suppose. Okay, but at the same time same solution aqueous NaCl solution का किसी दूसरे कोई बंदा तुम्हारा फ्रेंड है सपोज, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया and experimentally he found that the osmotic pressure of the same solution is coming out to be 4 atmospheric pressure. Are you getting me? 4. हमने with the help of this formula जो इसकी osmotic pressure निकाला, it comes out to be 2 atm, but experimentally जब उसको perform किया गया, एक experiment किया गया और देखा गया कि इसका osmotic pressure आता कितना है, उसमें इसका 4 आ रहा है. In the same manner, when with the help of this elevation in boiling point formula, we calculated the elevation in boiling point of the same solution aqueous NaCl, it comes out to be 2 Kelvin. Are you getting me? But when an experiment was performed, the value was observed to be 4 Kelvin. Are you getting me? Atmospheric पे यहाँ पे जो हमने colligative property with the help of osmotic pressure with the help of formula हमने निकाला तो वो 2 atm आया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया तो नॉर्मल जो इसकी वैल्यू आई वो आई 4 atm. और इन द सेम मैनर जब हमने इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा, इट कम्स आउट टू बी, कैलकुलेट किया हमने किससे, एक फार्मूले से जो हमारा कॉलिगेटिव फार्मूले का जो कॉलिगेटिव फार्मूला है हमारा, विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला हमने कैलकुलेट किया. सो इट कम्स आउट टू बी 2 Kelvin. बट व्हेन अ एक्सपेरिमेंट वाज डन, it was observed that the elevation in boiling point of the same aqueous NaCl solution comes out to be 4 Kelvin. Now the question is why this is happening. Calculated जो फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू, उसमें और जो एक्सपेरिमेंटली हम परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें जो हम वैल्यू देख रहे हैं, वो दोनों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस क्यों है? आर यू गेटिंग मी? दोनों में डिफरेंस आ रहा है. इफ़ द फॉर्मूला इज़ करेक्ट तो दोनों साइड पे जो आंसर आना चाहिए इट शुड बी करेक्ट. वाई देयर इज़ द वेरिएशन? Why there is a variation when we are using the formula, the value is totally different, and when we are performing experiment and observing the value, it is totally different. Why there is a difference? So that was the problem. क्या हो क्या रहा है? So now listen, what was happening? Actually what was happening, whenever NaCl is dissolved in water, it is a electrolyte. Do you know? NaCl is an electrolyte. So electrolyte means that kind of substances which whenever dissolve in water they dissociate into ions. Okay, so NaCl is a kind of what? Electrolyte. Whenever it is dissolved in water it dissociate into ions, Na plus and Cl minus. अगर जो यहाँ पर 100% डिसोसिएशन हो, वी आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज़ अ 100% डिसोसिएशन. सो अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे ही NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में NaCl इज डिसोशिएटेड इनटू Na प्लस
NaCl माइनस। हम NaCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर कर रहे हैं? 1 मोल कंसिडर कर रहे हैं। बट इन वाटर व्हाट इज हैपनिंग? NaCl इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। सो एक मोल तो हुआ Na प्लस का और एक मोल हुआ Cl माइनस का, तो टोटल मोल्स कितने हो गए? 2 मोल्स। आर यू गेटिंग मी? हमने इसको कंसिडर किया, जो हम फार्मूला लगाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वी कंसिडर्ड इट एज अ 1 मोल। बट पानी में, वाटर में हो क्या रहा है उसका वो तो हमें नहीं दिख रहा ना। हम तो सोच रहे हैं NaCl इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मोल और सिंगल मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होता है ये अपने 2 आयंस में डिवाइड हो गया। आर यू गेटिंग मी? तो इससे इसके नंबर बढ़ गए। आर यू गेटिंग मी? दिस सॉल्यूट इज डिसोशिएटेड इनटू 2, जिससे इसके नंबर बढ़ गए। हमने इसे 1 मोल कंसिडर किया, लेकिन ये वाटर में जाने के बाद तो 2 मोल बन गया। एंड वी नो रियली वेल दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। आर यू गेटिंग मी? तो हमने इसको 1 मोल कंसिडर किया और ये हो जाता है 2 मोल। तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू यहाँ पर जो आ रही थी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा था हमारा 2 atm आ रहा था, वो यहाँ पर 2 हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ 1 मोल कंसिडर कर रहे थे NaCl का। बट व्हाट इज हैपनिंग? NaCl आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर इट इज़ फॉर्मिंग 2 मोल्स। तो हम इसको 1 मोल कंसिडर कर रहे थे, ये हो गए 2 मोल, जिसकी वजह से इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट ऑब्जर्व, ऑस्मोटिक प्रेशर भी डबल हो गया यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटली जिसकी वैल्यू आ रही है वो डबल हो गया, और जो हमारी जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था वो भी जस्ट डबल हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर में जाने के बाद डबल हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? और इज़ इट ओके टू यू? इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इससे हमें ये पता लगता है, हम इसको 1 मोल कंसिडर कर रहे थे बट ये 2 मोल हो जाता है। एंड ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली व्हाट? they are dependent on number of moles, number of particles of solute। तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए जो हमें दिख नहीं रहे थे, नेकेड आई से हमें नहीं दिख रहा। हमें क्या पता क्या हो रहा है NaCl का, हम तो 1 मोल मान के काम कर रहे थे, लेकिन वो 2 मोल हो गए। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू रेक्टिफाई दिस? इट मीन्स इस फॉर्मूले में जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें? सो नाउ at this point the Van't Hoff factor comes. Okay, now it will play their role. Okay, Van't Hoff gave a factor and it is represented by I. Okay, and the value of I for this reaction, NaCl वाली reaction के लिए, the value of I is number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation। Are you getting me? This is the Van't Hoff factor for dissociation। यहाँ पे dissociation हो रहा है ना, उसके लिए number of particles after dissociation, number of particles before dissociation। अगर हम इसको यूज़ करें, और इन्होंने क्या किया, इस फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो फॉर्मूला है उसमें पुट किया। सो एक्चुअली Van't Hoff put Van't Hoff factor in the कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी I इन्होंने यहाँ रखा, और यहाँ पर देखो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पर भी इन्होंने I को पुट कर दिया। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? हाउ इट विल रेक्टिफाई द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग राइट नाउ? नाउ लिसन, अगर हम इसमें नंबर लिखें, Van't Hoff फैक्टर इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। नाउ जस्ट ऑब्जर्व NaCl, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, हाउ मेनी पार्टिकल्स? 1 Na plus 1 Cl minus, it means 2 moles, 2 particles। So now we have put here 2। Okay, number of particles after dissociation 2, and just before of dissociation कितने थे? Obviously NaCl was a 1 particle, so 1। So the value of Van't Hoff factor comes out to be 2। Are you getting me? It comes out to be 2। Now it was the normal colligative property osmotic pressure। CRT की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? Obviously 2 atmospheric pressure। So I की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं इस osmotic pressure में, सो इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय द प्रीवियस वैल्यू जो हमें 2 मिल रही थी, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई की, वी आर गेटिंग व्हाट? 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही तो हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रहा था। गेटिंग मी और नॉट? नाउ नेक्स्ट इज इट शुड बी क्लियर आई थिंक। अब देखो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर भी हमने I को रखा। अगेन द वैल्यू ऑफ द I इज़ 2 एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अगर हम I को यहाँ रखते हैं और ये जो नॉर्मल
हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, ये कितना था, 2 केल्विन था। यहाँ पे हमने आई की वैल्यू पुट करी, ओके, सो 2 into the value of I, it becomes 2 into 2 is equal to 4. It means if we put a Van't Hoff factor in the colligative property formula, the formula is rectified. Formula rectify हो गया, और formula rectify होने के बाद हमारी जो experimental value है और जो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी फॉर्मूले से, दोनों वैल्यू बिल्कुल मैच कर रही हैं और आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इट मीन्स अब इनमें आई रखने के बाद, आई मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर इन फॉर्मूलेज में पुट करने के बाद वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। सो यही इसका सोल्यूशन है, इससे हम इनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो दिस आई शुड बी, आई एक्चुअली यूज़ किसके लिए कर रहे हैं हम, जो कि इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो फार्मूला हमारे लिए इनफ है। इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली whenever they are dissolved in water they get dissociated. Are you getting me? Listen class, that was dissociation. NaCl की जो हमने केस पढ़ा, it was related to dissociation, क्योंकि NaCl was dissociated. एक चीज़ और होती है वाटर में, एक चीज़ और होती है। देखो हमने एक कंपाउंड लिया, ओके, सपोज देयर इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ A, इसके 2 मोल्स लिए हमने, कोई A कंपाउंड है उसके, हमने इसकी फार्मूले से पुट की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला, वी गॉट द ऑस्मोटिक प्रेशर कम्स आउट टू बी 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। लेकिन जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो इसकी वैल्यू हाफ आ रही है। NaCl का जो केस था ना, वहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी इट वाज गोइंग टू इंक्रीज। NaCl में वैल्यूज़ जो थी हमारी, यहाँ पर 2 atm आया था कैलकुलेट जो की थी हमने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, एक्सपेरिमेंटली 4 atm आया था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज 2 केल्विन एंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब एक्सपेरिमेंटली हमने परफॉर्म किया तो 4 केल्विन आ रहा था। तो वहाँ तो क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, मतलब ज़्यादा बढ़ रही थी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ज़्यादा आ रही थी और फार्मूले के हेल्प से जो वैल्यू आ रही थी इट वाज लो। बट व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, इसमें कम हो रही है, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है, और जो एक्सपेरिमेंटली हमने एक्सपेरिमेंट करके जो नॉर्मली देखा इट इज़ कमिंग आउट टू बी हाफ और लोअर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, ओके। कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ हायर। यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो, सपोज इट कम्स आउट टू बी 8 केल्विन जब हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, बट यहाँ पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ कमिंग आउट टू बी 4 केल्विन, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। पहले केस में जो वैल्यू थी हमारी, वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी फॉर्मूले से कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ रही थी, एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा आ रही थी। यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू आर कमिंग टू बी हायर एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, द थिंग इज एक्चुअली सपोज दिस इज़ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, हमने इनको 2 पार्टिकल कंसिडर किया, ओके। ये कोई हमने लिया था जैसे NaCl लिया, ऐसे मैंने ये लिया 2 पार्टिकल, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 100 सपोज ये 100% ये एक्चुअली जैसे ही वाटर में जाता है ये एसोसिएट हो जाता है। एंड व्हाट वाज हैपनिंग विद द NaCl, इट वाज गेटिंग डिसोशिएटेड। आर यू गेटिंग मी? और इस केस में, एसोसिएशन वाले केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मोल्स हैं दे आर गेटिंग व्हाट, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है इनका, वहाँ डिसोसिएशन हो रहा था, यहाँ एसोसिएशन हो रहा है। सो हम इस 2A को मान रहे थे ये 2 मोल्स हैं। आर यू गेटिंग मी? जैसे ये पानी में जाता है, वाटर में जाता है, ये दोनों कंबाइन करके सिर्फ 1 मोल बना लेता है, 1 पार्टिकल बन जाता है। गेटिंग मी? तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हम तो इसको समझ रहे थे ये 2 मोल्स हैं वाटर में, हमने जब इसे डिसॉल्व किया, जब इसका सोल्यूशन बनाया, लेकिन ये वाटर में जाने के बाद इसका सिर्फ 1 ही मोल रह जाता है। आर यू गेटिंग मी? जिसकी वजह से ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली दे डिपेंड्स ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट हम उसे 2 समझ रहे थे, लेकिन वो वाटर में जाने के बाद 1 हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर गेटिंग रिड्यूस्ड। In the first case, the number of particles were increasing, but in the case of association, the number of particles are getting reduced. अगर यहाँ पे number of particles कम हो गए,
ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी कम आएंगी, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ज़्यादा आएंगी, और जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करी वो ऑब्वियसली कम आएंगी। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर गेटिंग रिड्यूस, जो हमें नहीं दिख रहा व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द वाटर, वी डोंट हैव एनी आइडिया। हमने 2 मोल लिए थे, हमें लगा 2 मोल्स होंगे, लेकिन वहाँ जाके वो एसोसिएट हो गया और 1 मोल बन गया, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रिड्यूस हो गई। नाउ हाउ टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम अगेन? अगेन वील हैव टू रेक्टिफाई दिस विद द हेल्प ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। सपोज यही था हमारा आई, यहाँ पे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हम 2 कंसिडर किए थे हमने, इसके 2a के हमने 2 नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर किए थे, बट वाटर में जाने के बाद ये एसोशिएट हो गया, नाउ इट इज़ फॉर्मिंग ओनली 1 मोल। सो ये 1 मोल बना, ये एक्चुअली 1 मोल बना रहा है, तो जिसकी वजह से हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो थी वो इनकी रिड्यूस हो गई हैं, 2 मोल्स के 1 मोल बन गए जाकर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिड्यूस हो गई। सो नाउ हाउ टू रेक्टिफाई दिस? अगेन वील हैव टू, अगेन वेंट हॉफ गेव अ वेरी गुड formula, and what the formula? It is what? Van't Hoff factor I. Now in the case of association, the I is number of particles after association. उस केस में क्या था dissociation में? number of particles after dissociation. But in this case it is the case of association ना, associate हो रहे हैं। Now I is number of particles after association divided by नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। वहाँ डिसोसिएशन था, यहाँ एसोसिएशन है। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इस पूरी जो हमारे पूरा ये ए और एसोसिएशन वाला था, अगर इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, ये 2a था, 1 बन गया, 2 मोल्स का 1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन बिकम्स 1 मोल। आर यू गेटिंग मी? सो वील हैव टू पुट हियर 1। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने थे यहाँ पे? 2, तो वील हैव टू पुट हियर 2। सो द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर कम्स आउट टू बी हाफ। आर यू गेटिंग मी? इस हाफ को अब ये नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज CRT, हमने आई की वैल्यू यहाँ रख दी, आई हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, जैसे हमने पहले पुट किया था बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया आई को, और नाउ हम आई की वैल्यू यहाँ रखते हैं, इट इज़ हाफ। सो इसकी जो टोटल वैल्यू थी इट वाज कमिंग आउट टू बी व्हाट? 6 ATM। लेकिन जब हम आई की वैल्यू यहाँ रखते हैं, नाउ इट बिकम्स व्हाट? 6 ATM बिकम्स हाफ ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू। 6 ATM था हमारा, 1/2 इंटू 6, it comes out to be 3 ATM. Are you getting me? 3 and experimentally value was 3। तो हमारी वैल्यू ठीक आ गई। अब पहले 6 आ रही थी, अब हमने आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो 6, यहाँ पे 3 आ गई। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इट वाज कमिंग आउट टू बी 8 केल्विन, बट यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम, यहाँ पे भी हमने आई की वैल्यू रख ली। नाउ वैल्यू ऑफ आई कम्स आउट टू बी हाफ, यहाँ देखो, और जब ये हाफ आती है हमने इसमें वैल्यू रखी, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ रही थी? देखो यहाँ पर 8 केल्विन, लेकिन जैसे ही हम आई की वैल्यू रखते हैं नाउ इट बिकम्स 4 केल्विन। सो यहाँ पर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पर 4 केल्विन, आई मीन जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल हो गई। आर यू गेटिंग मी? और ये दोनों इक्वल होने के बाद हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, जो हमारी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में, वो हमने रेक्टिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। Now class, if we combine both association and dissociation, okay, if we combine and if we want to get the combined formula of Van't Hoff factor, so now the Van't Hoff factor becomes, this Van't Hoff factor is for both association and dissociation. So Van't Hoff factor is equal to number of particles after dissociation और association, दोनों dissociation association के cases इसी formula से solve हो जाएंगे। So number of particles after dissociation or association divided by number of particles before dissociation or association. So this is the combined formula of Van't Hoff factor. Okay. So now what happens? हमने इस I को, we actually put the I Van't Hoff factor in all the colligative properties to rectify to get the correct answer.
एंड आई जो है हम जो यहाँ रख रहे हैं इट इज़ ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं. सो नाउ लिसन, यहाँ पे सब में हमने आई रख दी, आई 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 और आई, सारे फॉर्मूले हमने रेक्टिफाई कर दिए. नाउ विद द हेल्प ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर वी आर गेटिंग डिफरेंट फार्मूलाज पुटिंग आई हियर. ओके, सब में हमने आई आई रख दिया है. नाउ लिसन क्लास, डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू whenever there is the 100% dissociation of NaCl or 100% association of that compound A, अगर मान लो dissociation is not 100%, are you getting me? Dissociation or association if it is not 100%, so we'll have to actually we'll have to consider the degree of dissociation or association, and it is called as alpha. We have already discussed in equilibrium chapter. Okay, so now we'll have to consider degree of dissociation or association alpha. Okay, अब जब 100% dissociation नहीं है, so how to solve these problems? Now listen, this is NaCl 1 mole and Na plus और Cl minus, ये अभी कुछ भी इनका हुआ नहीं है, अभी ये हमने रिएक्शन स्टार्ट ही किया सिर्फ. Now whenever NaCl is dissolved it becomes Na plus and Cl minus वाटर में आकर. Now ये NaCl जो है 100% तो डिसोशिएट हो नहीं रहा है. कितना हो रहा है? सपोज ये अल्फ़ा डिसोशिएट होता है Na प्लस में और अल्फ़ा डिसोशिएट होता है ये Cl माइनस में. और इसकी जो NaCl है इक्विलिब्रियम जब पहुंचता है ना, इक्विलिब्रियम पे NaCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने बचते हैं? 1 माइनस अल्फ़ा. मतलब अल्फ़ा इसका एक्चुअली ये पूरा तो डिसोशिएट हो नहीं रहा है, स्मॉल अमाउंट, मतलब अल्फ़ा इज़ गोइंग टू डिसोशिएट. तो अल्फ़ा डिसोशिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली NaCl का कुछ तो अमाउंट होगा, क्योंकि 100% डिसोशिएट तो हो नहीं रहा है. तो कितना अमाउंट सोल्यूशन में होगा NaCl का? तो कितना होना चाहिए? इसके पहले थे नंबर ऑफ मोल्स 1, अब कितने हो गए? क्योंकि डिसोशिएट कितना हो रहा है ये अल्फ़ा के इक्वल डिसोशिएट हो रहा है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन द सोल्यूशन वुड बी 1 माइनस अल्फ़ा. आर यू गेटिंग मी? इतना ही तो डिसोशिएट हुआ है, तो बचा कितना? 1 माइनस अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा वैल्यू वुड बी ऑफ दिस एंड अल्फ़ा वैल्यू वुड बी ऑफ दिस. अगर मान लो ये NaCl 100% डिसोशिएट हो जाता, जैसे कि हमने पहले केसेस देखे हैं जिसमें 100% डिसोशिएट हो रहा है, तो क्या होता? NaCl का एक भी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होता. आर यू गेटिंग मी? जो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा वैल्यू आ रही है ना, कुछ जो बच रहा है ये भी नहीं होता. होता है क्या? पहले NaCl इसका जो नंबर ऑफ मोल्स था वो 1 था. डिसोशिएट होने के बाद एक नंबर ऑफ मोल इसका होता और एक नंबर ऑफ मोल जो था वो इसका होता, जैसे हमने पहले देखा था. यहाँ पे ये 1 मोल था स्टार्टिंग में, बाद में ये तो फिनिश हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इसका एक बचता है, इसका एक बचता है, जिसकी वजह से 2 होते हैं. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिसोशिएटेड, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कुछ होंगे. तो इसके सिर्फ अल्फ़ा पार्ट ही डिसोशिएट हो रहा है. तो सपोज ये इसके नंबर ऑफ मोल्स बने अल्फ़ा, इसके नंबर ऑफ मोल्स बने अल्फ़ा Na प्लस के, और जो NaCl के रिमेनिंग मोल्स होंगे इट वुड बी 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि इसके पहले इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स वाज 1. सो कितने इसके डिसोशिएट हुए? ओनली अल्फ़ा पार्ट डिसोशिएट हो. तो ये इतना NaCl एग्जिस्ट करेगा इन इक्विलिब्रियम. एट इक्विलिब्रियम ये इतना एग्जिस्ट करेगा, Na प्लस भी अल्फ़ा में एग्जिस्ट करेगा और Cl माइनस भी अल्फ़ा में एग्जिस्ट करेगा. अब इन केसेस में अगर हमें आई निकालना है, क्योंकि हमें उन फॉर्मूले में सब में वेंट ऑफ फैक्टर, वील हैव टू पुट वेंट ऑफ फैक्टर, सो वील हैव टू कैलकुलेट आई. So in these cases when the dissociation or association is not 100%, in these cases I would be, the formula of I would be same. What? Number of particles after dissociation or association divided by number of particles before dissociation or association. Formula is same. But यहाँ पर देखो, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ से. नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है उसको हमने ले लिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें सबके कंसिडर करने पड़ेंगे कि सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बचते हैं आफ्टर डिसोसिएशन. आर यू गेटिंग मी? कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सोल्यूशन में आफ्टर डिसोसिएशन. सो यहाँ देखो कितने हैं. NaCl के भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितना है? 1 माइनस अल्फ़ा है. तो हमने सारे नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं आफ्टर डिसोसिएशन कितने होते हैं. सो 1 माइनस अल्फ़ा तो NaCl के हो गए, 1 माइनस अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा इज़ प्लस अल्फ़ा इसके हैं प्लस अल्फ़ा किसके हैं? Cl के, Cl माइनस के. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए? 1 माइनस अल्फ़ा ऑफ NaCl, अल्फ़ा ऑफ Cl एंड अल्फ़ा ऑफ Na प्लस.
तो टोटल इनका सम करेंगे हम, तभी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन आएंगे। कितने हुए? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? NaCl के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे सोल्यूशन में? इट वाज ओनली 1 ना। यहाँ देखो स्टार्ट होने से पहले 1 था, तो वील हैव टू पुट डिवाइडेड बाई 1। सो वैल्यू ऑफ I कम्स आउट टू बी, इस अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, so it comes out to be 1 plus alpha. So value of I is 1 plus alpha. I think it would be clear to all of you. Class. Now listen class, in all the cases the value of I would be different. Suppose there is another salt AlCl3, aluminum tetrachloride. यहाँ पर what is happening? If it is dissociated, obviously it will get dissociated into Al plus 3 Cl minus ions. Okay, it is different from NaCl. ये डिसोशिएट हो रहा है। इसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स से देखो मैं एक और कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ताकि कोई भी इफ़ इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल, सो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट। ओके, सब ऑब्वियसली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 इज़ 1 इनिशियल, इसके 0 0 क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है कुछ भी। अब ये कुछ डिसोशिएट हुआ AlCl3, कितना हुआ? अल्फ़ा के इक्वल, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे? 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि इतना डिसोशिएट हुआ। जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर होते हैं उतने से ही हम अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। सो एल्युमिनियम इज़ अल्फ़ा एंड Cl आयंस के कितने हो जाएंगे? क्योंकि 3 Cl आयंस हैं, दैट्स वाई वी विल हैव टू मल्टीप्लाइड अल्फ़ा विद 3. सो यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन इक्विलिब्रियम। आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर होंगे, किसी के भी आयंस के हैं, किसी के भी, हमें उतने से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आर यू गेटिंग मी? सो एल्युमिनियम Al प्लस 3 के कितने हैं? अल्फ़ा। Cl माइनस के कितने हुए? 3 अल्फ़ा। और यहाँ पर रिमेनिंग कितने हुए? 1 माइनस अल्फ़ा। इट इज़ एट इक्विलिब्रियम। ओके, वही कंसिडर करता है। सो द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर कम्स आउट टू बी, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर? Formula of Vent factor is number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation. So number of particles after dissociation is 1 minus alpha of AlCl3 plus alpha of Al plus 3 plus 3 alpha of Cl minus. तो टोटल और बिफोर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मोल्स है AlCl3 के? ऑब्वियसली इट वाज 1, सो वी विल हैव टू पुट हियर 1। अब ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, कितना आया? 1 प्लस 3 अल्फ़ा। सो द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर कम्स आउट टू बी 1 प्लस 3 अल्फ़ा। सो दिस 1 प्लस 3 अल्फ़ा इज डिफरेंट फ्रॉम what we were getting in NaCl. Are you getting me? It was 1 plus alpha. So it is totally different ना, so that's why we are getting different value. तो मैंने दोनों को आपको solve करके दिखा दिया है. Now the case is of association. What is happening in association? जैसे मैंने A का दिखाया था ना, 2 moles of A मैंने लिए और ये associate होने के बाद A2 बनाया उन्होंने. Are you getting me? Is it clear to all of you? In the same manner मैंने एक example ले लिया. This is acetic acid. So 2 moles of acetic acid are taken and it is becoming what? CH3COOH whole twice. मतलब इनका क्या हुआ? ये associate हो गए. और एसिटिक एसिड जो होते हैं ना, ये एसोसिएट होते हैं. क्यों एसोसिएट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक्चुअली हमने इनके 2 मोल्स लिए, लेकिन जैसे ये वाटर में जाते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों मोल्स इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं. कैसे करते हैं देखो. ये देखो, इसका OH, इसका जो O है इस वाले मॉलिक्यूल का, ये 2 मॉलिक्यूल है हमारे, इसका जो O है इट इज़ फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द H ऑफ द अदर एसिटिक एसिड, और इसका जो OH है इट इज़ फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द O ऑफ द अदर एसिटिक एसिड. तो ये एक तरीके से डायमर, दिस इज़ कॉल्ड डायमर. जब 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन हो जाए इट इज़ कॉल्ड डायमर. सो दे आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ डायमर. ओके, जब 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, जैसे कि सपोज ये है ए और एक ये इस तरीके से कंबाइन हो जाए, एक ए यहाँ आ जाए, ये 3 अगर कंबाइन हो जाएंगे इट वुड बी कंसिडर्ड एज ट्राइमर. सो दिस इज डायमर. नाउ इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ 1 मॉलिक्यूल. ओके, 1 मोल 1 मॉलिक्यूल 1 पार्टिकल. और पहले इसको हमने 2 कंसिडर किया था, लेकिन ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए अब ये इट बिकम्स व्हाट. इन द केस ऑफ एसोसिएशन व्हाट इज हैपनिंग, 1 मोल इसका था, ये 0 हो गया.
अब यहाँ पर इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान रखो, यहाँ पे हमने 2 मोल्स लिए, हमें यहाँ रख रहे हैं 1 मोल। आर यू गेटिंग मी? हम यहाँ रख रहे हैं 1 मोल, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही कर रहे हैं। सो वी आर पुटिंग हियर 1 मोल बट वी आर हैविंग 2 मोल्स, और यहाँ पे 0 मोल बनेगा इनिशियली। तो ये ध्यान रखो, इसको इमेजिन कर लो, अपने दिमाग में डाल लो कि इसको इमेजिन करो कि इसके 2 मोल को हमें 1 मोल में कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज दोनों साइड से हम 2 से डिवाइड कर दें इसको। आर यू गेटिंग मी? इसको मैंने इक्वेशन को सपोज ब्रेन में करना है, यहाँ नहीं करना, 2 से डिवाइड कर दिया हमें, और इसको हमें 1 मोल बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 मोल रख रहे हैं। सो हमें इसे 1 मोल ही बनाना है। हाउ टू मेक इट 1 मोल? नाउ लिसन, इसको दिमाग में हमने इमेजिन कर लिया। ये हो गया हाफ। इफ़ वी डिवाइड बोथ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट बाई 2 वी विल बी गेटिंग व्हाट, CH3COOH, सिंगल मोल, सिंगल इसका मोल आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया है। तो ये तो 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बट ये तो हाफ हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? ये दिमाग में रखना है। अब हम इसका करते हैं, देखो इसका मोल्स दिया हमने 1, क्योंकि अब इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया, और इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 0। ये हाफ है, ध्यान रखना, दिस इज़ हाफ। अब इसके 1 माइनस अल्फ़ा हुआ, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, जितने नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ होते हैं उतने ही अल्फ़ा से हम मल्टीप्लाई करते हैं। आर यू गेटिंग मी? मैंने बताया इससे पहले। तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? ये हुए अल्फ़ा/2। अल्फ़ा की हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी। आर यू गेटिंग मी? तो हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, इसका हो गया 1 माइनस अल्फ़ा और इसका हो गया अल्फ़ा/2। ओके, तो ये हमें इमेजिन करना है अपने दिमाग में, लेकिन ये अल्फ़ा वाला जो कैलकुलेशन है ना, वील हैव टू डू दिस हियर ऑन द कॉपी। सो 1 हमने इसको माना, इसका 0, इसका हुआ 1 माइनस अल्फ़ा। ओके, जैसे यहाँ किया मैंने 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि मैं इसको 2 से डिवाइड कर चुका हूँ अपने ब्रेन में। एंड इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? ये आएंगे अल्फ़ा/2, जैसे मैंने यहाँ किया ना अल्फ़ा/2, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी 2 से डिवाइड कर चुका हूँ। सो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स, वी आर गेटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस at equilibrium. So how to calculate the I mean Van't Hoff factor? Again, the formula of Van't Hoff factor is number of particles after association divided by number of particles before dissociation. So number of particles after association means इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए 1 प्लस अल्फ़ा, सम किया हमने इसका, और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए प्लस अल्फ़ा/2। एंड बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन कितने थे? बिफोर एसोसिएशन इट वाज 1, सो डिवाइडेड बाय 1। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, वील गेट 1 माइनस अल्फ़ा/2। दिस इज़ द वेंट हॉफ फैक्टर फॉर एसिटिक एसिड इफ इट इज़ गोइंग टू एसोसिएट, और एसोसिएशन अगर वो 100% नहीं है तब केस में। ओके, ऐसी एक ट्राइमर वाला केस ले लो, सेम चीज़ है। ये 3A है, ये 3 मोल से इसके कितने बन गए? 1 मोल हो गए इसके। तो पहले इसका हमने माना इसका 1 मोल, इसका 0, बिल्कुल इसको भी इसी तरीके से कर लो। 3A को डिवाइड कर दो, दोनों साइड से 3 से डिवाइड कर दिया। नाउ इट विल बिकम A, और 1/3 A3 बनेगा। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँ, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1, इसका 0, इसके हो गए 1 माइनस अल्फ़ा, एंड इसके कितने हो गए? अल्फ़ा/, क्योंकि यहाँ 3 से हमने डिवाइड किया पूरे को, सो अल्फ़ा/3। ओके, यही सेम चीज़ यहाँ आ रही है, 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा/3। सो आफ्टर एसोसिएशन द I would becomes 1 minus alpha, number of moles of this, plus alpha/3, number of moles of this, divided by number of particles before association, it was 1. So इसकी वैल्यू कितनी आई? 1 minus 2 alpha/3. Are you getting me? इनकी वैल्यू हमारी अलग आ रही है, तो ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा. You will have to calculate all these things in all the numerical in different way. Are you getting me? अब हम जो हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और वो न्यूमेरिकल जो मैं करा रहा हूँ, लिसन, दीज न्यूमेरिकल कम्स in the weightage of, I mean it is having the weightage of 5 marks. Most of the time it comes in the 5 marks and not less than 3 marks. जो न्यूमेरिकल मैं अब कराने वाला हूँ, less than 3 marks से तो कम में आते ही नहीं है, नहीं तो 5 marks का न्यूमेरिकल आता है उसके ऊपर बेस्ड, जो मैं अब करा रहा हूँ. ध्यान से सुनना है इनको. So it should be clear to all of you. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट. So listen class, first of all we'll take the case of dissociation.
और उसके बाद एक न्यूमेरिकल लूँगा मैं एसोसिएशन का. ओके, सो नाउ द न्यूमेरिकल इज़, इसको पॉज करके पढ़ लेना अच्छे से न्यूमेरिकल को. मैं और इसे बड़ा कर देता हूँ. इसको पॉज करो एंड रीड दिस न्यूमेरिकल फर्स्ट, देन वील ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके, क्वेश्चन सेज अ सोल्यूशन containing 0.5 gram of KCl dissolved in 100 gram of water freezes at minus 0.24 degrees Celsius. Calculate. Number 1 is Van 't Hoff factor. Number 2 is the degree of dissociation of the salt. Degree of dissociation of salt is what? Alpha. And Van 't Hoff factor is what? I. तो हमें ये दोनों कैलकुलेट करना है इस फार्मूला से. मतलब इस न्यूमेरिकल में हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले वी नो दिस इज़ द फार्मूला. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस फार्मूला. ओके, एंड यहाँ पे आई की वैल्यू हमने लगा दी है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था ना सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई. तो ये हमारा फार्मूला है, और इस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम आई की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है ईजिली. यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे. तो इस आई की वैल्यू के लिए हमें सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए. ओके, और यहाँ से हम Van 't Hoff फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इज सेइंग वील हैव टू फाइंड ऑफ Van 't Hoff फैक्टर. उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकालेंगे. सो नाउ लिसन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 वी नो, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. इट इज़ माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस. सो हमने यहाँ पे 0 माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस हमने रखा. सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम्स आउट टू बी 0.24 डिग्री. मिल गया हमें. अब यहाँ पे हमने 0.24 डिग्री रख लिया. आई हमें कैलकुलेट करना है. के एफ की वैल्यू फॉर द वाटर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी नो इट इज़ 1.86, वो भी रख लिया हमने. दिस इज एम इज़ मोलैलिटी. Molality is what? Number of moles of solute. Solute is KCl divided by mass of water in kilogram. We know this. Now listen. Again 0.24 elevation boiling point. This is I, जो हमें कैलकुलेट करना है. KF की वैल्यू हमने यहाँ रख दी. Number of moles of KCl. Number of moles of KCl. Number of moles क्या होता है? Given weight divided by molar mass of solute. Now in the question, given weight is 0.5 gram of KCl, it is given. So we have put here 0.5. Given weight is 0.5 of KCl, and this 74 point divided by molar mass, number of moles of KCl का meaning given weight is 0.5 divided by molar mass, and this is the molar mass of KCl 74.5. Okay, into there is mass of water. Mass of water is also given. What? It is 100 gram of water. Okay, it is given in the question. 100 gram of water में dissolve किया है हमने. So we'll have to put here 100 gram. As the mass of the water is given in gram, so we'll have to multiply it with the 1000. Okay, हमने सारी वैल्यू पुट करी यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने यहाँ पर, and after doing all these things we just have to calculate. We are getting the value of I, Van 't Hoff factor, comes out to be 1.92. Is it clear class? So हमें एक आंसर तो मिल गया. It is Van 't Hoff factor. I comes out to be 1.92. अब हमें दूसरा क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है what would be the degree of dissociation of the salt. Degree of dissociation of salt is alpha. For alpha we'll have to follow that thing which we have already discussed. Now initially it is nothing is given in the question कि यहाँ पे 100% डिसोशिएट होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो निकालते ही नहीं. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इट मीन्स 100% डिसोशिएट तो ऑब्वियसली नहीं हुआ. नाउ KCl इनिशियली वी टुक, बिल्कुल ऐसे ही करना है सब में. KCl का हमने नंबर ऑफ मोल लिए 1, इसके इनिशियली 0 थे. फिर इसका सिर्फ अल्फ़ा अमाउंट जो था, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो था वो इसका डिवाइड हुआ. सो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1 माइनस अल्फ़ा. K plus K alpha, and Cl minus is having alpha. So we know Van 't Hoff factor is what? Number of dissociation of number of particles after dissociation. You know na, number of particles after dissociation. I gave you this formula.
number of particles after dissociation, divide by number of particles before dissociation. Is it okay class? So now number of particles after dissociation, KCl के कितने हैं 1 minus alpha plus K plus is having alpha plus Cl minus is having alpha, and divided by number of moles of solute before dissociation, it was 1. Okay, divided by 1. So alpha से alpha गया, Vent Hoff factor comes out to be 1 plus alpha. Okay, and we know the value of Vent Hoff factor we have already calculated. यहाँ हमने रख दी, तो यहाँ पे 1 plus alpha is equal to I ना, so 1 plus alpha is equal to 1.92 we have already calculated. Now ये 1 उधर चला जाएगा, so alpha comes out to be 0.92. ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.92 minus 1, so it comes out to be 0.92. ये हमारा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और अगर हम इसकी परसेंटेज की फॉर्म में लेंगे, so the percentage comes out to be 92%. This is the answer, 92%. Okay. In class, next question is related to association. It is related to association, degree of association. So इसको पॉज करो पहले और इस न्यूमेरिकल को रीड करो. रीड करने के बाद ये बिल्कुल वैसे ही होगा, बस एसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगना है. इसको रीड करो. रीड करने के बाद फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे करते हैं. इसको पॉज कर दिया मैंने, इसको तुम भी पॉज करो और रीड करो इसको. So now listen class. The question says 2 gram of benzoic acid. 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shows depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Okay, 1.62 Kelvin. Calculate the I mean the Vent Hoff factor and degree of association. The question is same, बस इसमें association हो रहा है. बिल्कुल पहले जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही, but association है यहाँ पे. So we'll have to find out again Vent Hoff factor I and degree of association. Kf for the benzene is given, it is 4.9 Kelvin kilogram per mole. Okay, so इसको कैसे करना है, हमें निकालना क्या है. अगेन वील हैव टू फाइंड आउट दिस Vent Hoff factor फर्स्ट. एज दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट Vent Hoff factor, वी नो दिस फार्मूला. डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस, Vent Hoff factor हमने यहाँ रख दिया. तो यहाँ पे हमें सब की वैल्यू रख लेनी है और यहाँ से आई निकाल लेना है. आर यू गेटिंग मी? सो डिप्रेशन डिग्री आई मीन द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन, इट इज़ 1.62. सो वी हैव पुट हियर 1.62. आई हमें कैलकुलेट करना है. The value of Kf is also given, 4.9. Now this is this is what? Molality. So formula of molality is number of moles of benzoic acid. This is benzoic acid. Number of moles of benzoic acid divided by mass of benzene. In this case, in this question, the benzene is the solvent now. So the mass of benzene we'll have to consider here in kilogram. Okay. Now 1.62. is the depression freezing point. I हमें calculate करनी है. This is the value of Kf. Now number of moles of benzoic acid. सबसे पहले क्या होता है, given weight. number of moles क्या होता है, given weight divided by molar mass. So given weight of benzoic acid is given, 2 gram of benzoic acid is dissolved. Okay, so 2 हमने यहाँ लगा दिया, divided by molar mass of benzoic acid. Molar mass of benzoic acid is 122. Okay, so number of moles of benzoic acid हो गया 2 by 122. And the mass of the benzene, mass of benzene is also given, 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene. So it is given, so we'll have to put here 25 gram. And as it is given in grams, so we'll have to multiply it by 1000. Okay, अब इन सारी चीज़ों को हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद our Vent Hoff factor comes out to be 0.504. ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमें Vent Hoff factor आ गया. नाउ वील हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन. ओके, फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन वील हैव टू राइट दिस. दिस इज द बेंजोइक एसिड C6H5COOH, एंड ये एसोशिएट हो रहा है 1 मोल था, ये एसोशिएट हो गया 2 में. देखो इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे, मैंने बताया था ना. इसको हम बाहर कैलकुलेट कर, हम बाहर इसको समझ लेते हैं, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं. C6H5COOH और ये हो गया 1/2 C6
H5COOH। आर यू गेटिंग मी? हमने इसको इमेजिन कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया, सो ये 1 मोल हो गया और इसका हाफ हो गया। तो इसका कितना आया? ये है 1 मोल इनिशियल लिया, इसका था 0 मोल, फिर हमने 1 माइनस अल्फ़ा किया और ये हमने यहाँ पे हाफ लगा रखा है। तो ये हो जाए, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? अल्फ़ा बाई 2, जैसे हम पहले कर चुके हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस इज़ 1 माइनस अल्फ़ा एंड फॉर दिस इट बिकम्स अल्फ़ा बाई 2। नाउ Van't Hoff factor. Van't Hoff factor, we know Van't Hoff factor is number of particles after dissociation. So number of particles after dissociation कितने हैं? 1 minus alpha is of this, so 1 minus alpha plus इसके कितने बचे? alpha by 2. Okay, and number of particles before dissociation कितने थे? 1, so we'll have to put here 1. So Van't Hoff factor comes out to be, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 minus alpha by 2. Okay, now it is equal to Van't Hoff factor, and we know Van't Hoff factor we have already calculated, it is 0.504. So यहाँ पे 1 minus alpha by 2 is equal to 0.504. So alpha comes out to be, ये 1 उधर चला जाएगा, so alpha comes out to be 0.992. Okay, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, इट बिकम्स व्हाट? 99.2 डिग्री, 99.2%. सो दिस इज़ द आंसर. ओके, वन मोर थिंग, एक और इसमें न्यूमेरिकल होता है जिसमें हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट को कंसिडर करना होता है. उसमें हम फॉर्मूला ये लगाएंगे, k इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा. क्लास इसको याद रखो, सिर्फ यही फार्मूला लगाना है आपको, इसके अलावा कोई और फार्मूला मत लगाना. C इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, जैसे यहाँ है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक, ये मोलैलिटी है ना, यहाँ पे मोलैलिटी. सो इन दिस फार्मूला यू विल हैव टू पुट मोलैलिटी. मोलैलिटी इसमें भी गिवन है ना. अगर इसमें डिग्री, अगर इसमें हमें निकालना होता कांस्टेंट डिग्री, आई मीन यहाँ हमें निकालना होता कांस्टेंट ऑफ, इट इज़ एसोसिएशन ना. सो एसोसिएशन कांस्टेंट अगर हमें निकालना होता तो हमें ये फार्मूला लगाना होता. एंड विद सी की जगह पे हमें क्या लिखना होता है यहाँ पे? मोलैलिटी. एंड मोलैलिटी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. तो यहाँ मोलैलिटी रखते, अल्फ़ा वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखते और ये हमारा निकल आता. क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैंने इसका न्यूमेरिकल बताया नहीं है, लेकिन ये इसी तरीके से होता है. सो it was all about for the today's class. So goodbye for today. If you like the video, please press the like button. Okay, have a nice day ahead.